Hello friends. So in the last lecture we studied the PS1 and PS2 mean cyclic and non-cyclic photophosphorylation. So today we move further and we start a new topic, chemi-osmotic hypothesis. So as you know कि after PS1 and PS2 the synthesis of ATP is there and synthesis of NADPH2 is there. Okay, but how the ATP is synthesized, okay, with the help of ETS, or how there is the another thing who synthesize this ATP. Now this ATP is synthesized due to the chemi-osmotic hypothesis. Now I will I was already told you कि there is the differences of proton in the previous lectures. Okay, now if you see, this is the membrane of thylakoid. So just see carefully कि this is the lumen of thylakoid, and this is the stroma. Okay, so earlier I had already explained what is the concentration gradient, but still I am repeating. Okay, so this is the stroma of chloroplast, this is the membrane of thylakoid, and this is the lumen of thylakoid. Now as I earlier told you there are the cytochromes, okay, or cytochromes are present on the membrane of thylakoid. So there is the cytochrome or photosystem 1 and photosystem 2, both are occurs in the membrane, on the membrane of thylakoid. Okay, so due to this reactions PS1 and PS2 and water splitting, so because of this reactions PS1, PS2 and water splitting, so automatically the protons, or you can say hydrogen ions, are accumulated in the lumen of thylakoid compared to stroma. So stroma के comparison में the concentration of H plus ion, you can say proton, are accumulated more in the lumen and less in the stroma. So stroma के अंदर बहुत ही कम है और ल्यूमेन के अंदर ही ज्यादा है H plus ion और protons. How it happens, how it is it possible, कि कौन सी प्रोसेस है जिसकी वजह से the hydrogen ions, or you can say protons, are more accumulate in the lumen. So there are three reactions. The first reaction is water splitting. So because of water splitting, as you know कि 2H2O gives 4H plus, which present in the lumen of thylakoid. So automatically 4H plus, then 4 electron which are moved to PS2, and then O2 which directly released out in the atmosphere. Okay, so this 4H plus accumulate in the lumen of thylakoid. Second thing, during the ETS, the electrons are moved towards the electron carriers, but instead of electron carriers, electrons are absorbed or they received by hydrogen carriers. So during this transportation of electron, the hydrogen carriers release the hydrogen, means like NADPH2, they release their hydrogen during the ETS. They release the hydrogen NADPH2, they release the hydrogen, means hydrogen carriers, जो hydrogen carriers है वो release करते हैं hydrogen को into the lumen of thylakoid. So during the ETS, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनकी बजाय हाइड्रोजन कैरियर्स हैं, they receive the electron, they release the electron, and during this transportation of electron, the hydrogen ions hydrogens are released in the lumen of thylakoid. So this is the second thing. And third thing is NADPH2 is formed, or rather NADP plus H plus
और NADPH plus H+ is formed after PS2 और PS2 के अंदर जो NADPH2 बनता है it is also in lumen of thylakoid. So due to this three reactions, ये तीन रिएक्शन की वजह से हाइड्रोजन एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है इनटू द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड. सो थाइलाकॉइड के अंदर प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और स्ट्रोमा के अंदर है वो प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन कम है. सो ड्यू टू दिस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस द प्रोटॉन ग्रेडियंट और यू कैन से प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन आर डिफरेंट. सो केमी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड, प्रोटॉन की वजह से इसको बोलते हैं केमी. Osmosis means differentiation of differences between the concentration. So concentration gradient एक produce होता है या you can say proton gradient एक produce होता है जिसकी वजह से ये differences होता है. Okay, so proton gradients are there and because of this proton gradient ये जो है एक process start होती है. कौन सी वो देखते हैं कि when this कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज देयर, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है तो उसकी वजह से क्या होता है. सो प्रॉपरली देखिए कि ये जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन के ऊपर एंजाइम है, जैसे ये साइटोक्रोम्स है वो सब है उसकी वैसे ही एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं ATPase. नाउ ATPase has the two part. First is F0 and F1. Okay, F0 and F1. Okay, so two parts are there. Now it is present like this कि उसका जो F0 वाला part है which is present in the membrane, within the membrane, और उसका जो F1 वाला part है which is out of the membrane and it is near to or it is towards the stroma. स्ट्रोमा के टुवर्ड्स वो आउटसाइड वाला पार्ट है F1. सो F0 है वो मेम्ब्रेन के अंदर है एंड F1 है वो मेम्ब्रेन के बाहर आउटग्रोथ है टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, नॉट टुवर्ड्स द ल्यूमेन. ल्यूमेन के अंदर नहीं, मेम्ब्रेन के बाहर बट स्ट्रोमा की तरफ. ओके, सो यहाँ पे है F1. नाउ क्या होता है कि इसका एक कॉन्फॉर्मेशन है, उसका एक स्ट्रक्चर है, पूरा ATPase जो है उसका एक स्ट्रक्चर है which is present in the membrane. F0 is present in the membrane, F1 is present outside the membrane. Okay, towards the lumen, sorry, towards the stroma. Now what happened कि due to this concentration gradient ये जो H+ है वो H+ है वो ट्रांसपोर्ट होता है from the lumen to stroma. ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ ये H+ है वो ट्रांसपोर्ट होता है ड्यू टू दिस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. जब भी ये H+ ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ जाएगा वो ATPase के F1 कन्फॉर्मेशन को चेंज करेगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ F1 की मॉर्फोलॉजी चेंज करेगा और ये F1 की मॉर्फोलॉजी चेंज होने की वजह से देयर इज दी फॉस्फोराइलेशन अकर्स और ये जो ADP है वो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंड होकर बनता है ATP. मींस यू कैन से आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनडायरेक्टली एनर्जी कंजर्व करता है. एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन एक्यूमुलेशन है वो एनर्जी कंजर्व करता है. व्हाई? बिकॉज व्हेन दे ट्रांसपोर्ट दे फॉर्म द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. They form the ATP. Okay, so they are energy conserver और they energy conserve करते हैं प्रोटॉन आयंस कि जब भी प्रोटॉन आयन पास होंगे थ्रू द मेम्ब्रेन थ्रू द ATPase, F1 जो पार्ट है और ऑफ ATPase जो F1 पार्ट है ATPase का वो सिंथेसाइज करेगा ATP को. That's why the enzyme name is called ATPase. या you can say ATP synthase. Okay, जो सिंथेसिस करता है ATP को. So ATP फॉर्म होता है because transportation of H+ ion. So this is the chemiosmotic hypothesis. Okay, which is helps to produce the ATP in the light phase or light process. लाइट प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का है उसमें ATP प्रोडक्शन का काम इसकी वजह से होता है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से या केमियोस्मोटिक प्रोसेस से.
सेम प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग एटीपी। सो सेम प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के लैमेली के ऊपर या क्रिस्टी के मेम्ब्रेन के ऊपर, जो एनिमल के अंदर या फिर प्लांट के अंदर भी होता है, बट सेम चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो आप 14 चैप्टर में पढ़ेंगे। सेम केमी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, यू कैन से प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है, वो बात करेंगे हम 14 चैप्टर में। सो ये 13 चैप्टर के लिए क्लोरोप्लास्ट की बात करनी है हमें। सो दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड, रिमेंबर this is the membrane of thylakoid. ATPase is present on thylakoid. F0, F1 is outside, F0 is within the membrane, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ H+ होता है। और एक्यूमुलेट कैसे हुआ H+, वो भी मैंने आपको बता दिया 3 चीजों से। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ATP। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द लाइट फेज? सो कंप्लीशन ऑफ लाइट फेज, जब लाइट फेज कंप्लीट होता है, देयर आर 3 थिंग्स which produced after light phase. The first one is O2, which is directly released by chloroplast in the atmosphere. So O2 is formed. Then ATP is formed. जो अभी हमने देखा कि ATP बनता है. And third one, NADPH2 will form. So 3 चीजें बनती है, O2, ATP एंड NADPH2, ये 3 चीजें बनती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लाइट फेज। लाइट फेज कंप्लीट हो गई। नाउ एज यू नो कि लाइट फेज के लिए लाइट इज कंपल्सरी, सो डार्क फेज डजंट रिक्वायर द लाइट फेज। यू कैन से डार्क फेज है वो बायोसिंथेसिस फेज है, बिकॉज ड्यूरिंग द डार्क फेज वी सिंथेसाइज द फूड मटेरियल, रादर शुगर। हम शुगर को सिंथेसाइज करने वाला है, दैट्स व्हाई वी कैन से कि डार्क फेज जो है वो बायोसिंथेसिस फेज है। सो ड्यूरिंग द बायोसिंथेसिस फेज इट डजंट रिक्वायर लाइट, बट इट डिपेंड्स ऑन लाइट। व्हाई? बिकॉज आप बायोसिंथेसिस फेज में क्या यूज करने वाले हो? O2, ATP, सॉरी O2 नहीं, ATP and NADPH2, ATP and NADPH2 जो किससे बनता है? लाइट फेज से बनता है। और लाइट फेज के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? लाइट इज नेसेसरी। सो लाइट फेज के लिए लाइट इज नेसेसरी, बट NADPH2 सॉरी बिकॉज डार्क फेज के लिए लाइट फेज नेसेसरी नहीं है, लाइट नेसेसरी नहीं है, बट दे डिपेंड ऑन लाइट। ओके, लाइट फेज, बिकॉज ये दोनों चीज उसको लाइट फेज के बाद ही मिलेंगी। जस्ट इमेजिन कि जब लाइट खत्म हो जाती है, मीन्स रात हो जाती है, लाइट खत्म हो जाती है, तो लाइट फेज है इट इज ऑटोमेटिकली स्टॉप। लाइट फेज है वो लाइट की एब्सेंस से स्टॉप हो जाएगा, बट डार्क फेज है वो चलता रहेगा। कब तक? जब तक ATP और NADPH2 खत्म नहीं हो जाते तब तक। जैसे ही डार्क फेज खत्म होगा, लाइट फेज खत्म हुआ, लाइट मिलनी बंद हो गई, उसकी थोड़ी देर बाद ATP प्रोडक्शन और NADP प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, NADPH2 प्रोडक्शन। So automatically after some time the biosynthesis process is also stopped. That's why you can say कि light is not necessary for the dark phase, but dark phase is depending on light phase. Means light पे वो depend जरूर करता है, भले ही उसकी प्रोसेस के लिए, उसकी खुद की प्रोसेस के लिए लाइट नेसेसरी नहीं है। ये एक बात आपको याद रखनी है, जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये ATP NADPH2 वो कैसे हेल्पफुल है फॉर बायोसिंथेसिस प्रोसेस, और यू कैन से डार्क फेज के अंदर ये कैसे इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए यहाँ रखता हूँ। ओके, बाय।